یہ ضرور کیجیے گا، کوئی ایسی چیز بالکل مت کھائیے گا جو ڈاکٹر نے آپ کو سختی سے منع کی ہے، اور ہماری دعائیں تو آپ کے ساتھ ہے۔ جی عامر صاحب، ان کا خواب جو ہے وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے بات اس طرح کی ہے کہ میرے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مطلب آپ خواب سے ہاں ریلیٹڈ نہ بھی ہے ہو نا، تو ہاں جی، لیکن خواب کے بارے میں آپ خود یہ سجیسٹ کیسے کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے؟ اوکے، یعنی اگر آپ خود کو نہ بھی نہیں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہ وہ وہ آپ آپ سے سے ریلیٹڈ ریلیٹڈ نہیں ہے۔ نہیں خواب میں ہے۔ کیا کلر دیکھ رہے ہیں آپ، اچھا، اگر کپڑے دیکھ رہے ہیں تو کس کلر کے دیکھ رہے ہیں، اوکے، اگر آپ گرینری دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کے معنی الگ ہیں، پانی ہے، آگ ہے، پانی واٹ ہے، ایور، مطلب اب ایک آگ جلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ، مثال ہے آپ کبھی بھی آگ جلانے کا کام نہیں کرتے، چولہا جلاتے ہو صرف گھر میں، آپ اتنی بڑے فلیم تو نہیں لگاؤ گے نا، اتنی بڑی آگ تو نہیں لگاؤ گے کہیں، صحیح وہ آپ سے صحیح۔ ریلیٹڈ تو نہیں ہوا نا، لیکن آگ تو دیکھ رہے ہیں آپ۔ صوبیہ، اب آپ کو عامر صاحب کو بتانا ہوگا کہ جو آپ نے خواب دیکھے وہ خواب کیا ہے، ہاں، کہ ہو مین سکتا ہے وہ چیز آپ یہ سے ہے۔ ریلیٹڈ ہو، کیونکہ یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے ہو، یہ فیصلہ عامر صاحب کریں گے کہ جو کہ ماہر ہیں، جو کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ایک اور کالر ہے عامر اچھا صاحب، ان کو جی شامل جی، کر لوں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام، تحریم بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ تحریم کیسے ہو آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل مزے میں۔ جی تحریم۔ جی، ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ یہ خواب میری بہن نے کوئی 3 دن پہلے دیکھا تھا، اچھا، اور اس نے یہ دیکھا میرے والد صاحب کے بارے میں کہ ان کی جو ان کی ڈیتھ کو کوئی میرا خیال سے 14-15 ایئرس ہو چکے ہیں۔ تو میں بیٹھی ہوں، میری 2 بڑی بہنیں ہیں اور میری والدہ ہیں، اور میرے والد جو ہیں وہ مجھے ایک زیور پہنا رہے ہیں گلے کا، جس پہ دونوں بہنیں لڑ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں کیوں نہیں پہنا رہے، اس کو کیوں پہنا رہے ہیں۔ وہ آپ کو پہنا رہے ہیں؟ جی، اور وہ خوش ہے کافی، سونے کا ہے اور زیور؟ میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور خوش ہیں اور زیور پہنا رہے زیور؟ تحریم سنیے کہ عامر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو زیور ہے وہ سونے کا ہے؟ ہیں۔ جی، اچھا ٹھیک ہے، اور بتائیے اور کیا ہے اس میں؟ بس اتنا ہی خواب دیکھا تھا انہوں نے، خواب ان ہے۔ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ٹائمنگز وغیرہ کچھ آئیڈیا ہے آپ کی سسٹر نے جو یہ ٹائم دیکھا تھا کس وقت دیکھا تھا؟ نہیں، اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے آپ کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ آپ کو زیور پہنا رہے ہیں؟ جی جی جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، آن ایئر ٹھیک ہے، بتاتا آن ایئر سن لیجیے۔ تحریم جی، عامر صاحب ان کے خواب کا مطلب کیا ہو سکتا ہوں۔ ہے؟ ان کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی سسٹرز وغیرہ ہیں یا بھائی وغیرہ ہیں، وہ ان کو اپنا رویہ بالکل درست رکھنا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ ناراض نہیں ہونا ہے، کس غصہ بہن نہیں کے کرنا ساتھ ہے، جن کو زیور پہنا رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ؟ سب آپس میں اچھا ایک ٹھیک ہے، دوسرے کے ساتھ تمام بہنیں مل جل کر رہیں، پیار محبت سے رہیں، صحیح۔ کسی بھی معاملے میں آپس میں اگر ناراضگی پیدا ہو رہی ہے کسی بات سے تو بیٹھ کر اس کو کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے، قطعاً ناراض نہ ہوں آپس میں، ورنہ وہ ناراضگی بڑھ سکتی ہے اور اس میں دوریاں بڑھ سکتی ہیں۔ دوریاں بڑھ سکتی ہیں۔ تو تحریم، یہ میسج صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ تمام آپ کی سسٹرز کے لیے، آپ کے جو اور بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ آپ سے محبت رکھے تو آپ کی جو والد صاحب کی روح ہے انہیں وہ خوشی بھی ملے خوشی گی۔ ملے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی اپنا نام بتائیے۔ جی، زہرا بٹ میرا نام ہے۔ ہاں زہرا، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں کراچی مومن آباد سے۔ اوکے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بچے ہیں، ان کو اکثر غلط خوابیں آتی رہتی ہیں، اور آج مجھے بھی یہ خواب آئی تھی، تقریباً 4-4:30 بجے کا ٹائم تھا، ٹھیک ہے، کہ میری آنکھوں میں سے نا سرما بہہ کے میرے گلے میں جاتا ہے، تو جب میں اسے باہر نکالتی ہوں، تھوکتی ہوں نا، تو وہ چھوٹی سی بالکل بلیک کلر کی چھپکلی ہوتی ہے، تو وہ 2-3 دفعہ یہی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے بچوں کو بھی اسی طرح کے خواب نظر آتے ہیں؟ میرے بچوں کو بھی اسی طرح کے تقریباً خطرناک سے، کبھی کچھ اس طرح کے عجیب سے خواب آتے رہتے ہیں۔ یہ آپ نے صبح 4 بجے دیکھا ہے خواب؟ 4-4:30 کا ٹائم، 4-4:30 کا، ٹھیک ہے۔ جتنی جلد ممکن ہو۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایک چھپکلی کا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو چکا ہے، وہ میری نند کی بیٹی جو ہے وہ اس نے اپنی بیٹی چھوٹی سی ہے اس کے گلے میں ڈالا ہے، تو میں کہتی ہوں یہ تم نے کیوں اٹھا کے ڈالا ہے، تو مجھے کہتی ہے یہ میری امی نے آپ کے لیے لے آیا تھا، تو یہ میں نے سنبھال کے اس کے گلے میں ڈال دیا، یہ آپ کو دینا ہے۔ اچھا ہاں جی، اچھا، تو اور اس کا کلر جو ہے وہ اس چھپکلی کا جو ہے وہ بلیک کلر ہے؟ بالکل بلیک کلر ہے، ڈر لگتا ہے اس کو دیکھ کے۔ چلو ٹھیک ہے، میں ابھی زہرا پوچھیے آپ کو بتاتی ہوں، آپ نوٹ کر لو کہ کیا ہے، اگر آپ کو عامر صاحب کچھ بتا بھی رہے ہیں تو کیا ہے۔ عامر صاحب جلدی سے، کیونکہ نیوز کا جتنی ٹائم جلد بھی ہو رہا ممکن ہو، ہے۔ جتنی جلد ممکن ہو میرا نمبر لے کر مجھ سے آ کر ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہاں، خواب یہ خطرناک؟ معاملات ذرا خطرناک قسم کے ہیں اوکے، اور کوئی بڑا نقصان ہونے سے پہلے مجھ سے مل کہیں لیں۔ ان کے سسرال کی طرف سے تو کچھ کچھ بھی نہیں، یہ ایسی کوئی بات ہم نہیں کہہ سکتے، اچھا،
मेन चीज़ यही है कि ये खुद आके मिल लें, उसके बाद मैं इनको पर्सनली तौर पर जो है जो एडवाइस करूंगा वो कर लें, इंशाल्लाह मामला सही हो ठीक है। जाएगा। ज़ोहरा, तो आप आमिर साहब से बात करो ताकि आपको जल्द से जल्द ना एक हल में मिल जाए। इसके साथ ही टाइम हो चुका न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक की बात करते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन और बात होगी बद नजर और नजर। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक एक बार फिर आपके साथ इवनिंग लाउंज। और इवनिंग लाउंज में आपको मालूम है कि एवरी ट्यूसडे हमारा जो सेकंड सेगमेंट होता है वो इस्तिखारा, जिस तरह से अल्लाह ताला से आप हर काम में मदद मांगते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि अब आपको क्या करना चाहिए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो हमारे इस सेगमेंट में शेख मोहम्मद मुबशर आलम साहब भी मौजूद होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। अपना नाम बताइए, अपने वालिदा का नाम बताइए, आपका जो भी मसला है वो हल करेंगे। मुबशर साहब से मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुबशर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप खैरियत से हैं? बस थोड़ी थोड़ी सी तबीयत जो है वो तो क्लाइमेट की वजह है, क्लाइमेट की वजह कराची का मौसम चेंज होता है तो नज़ला, खांसी, बुखार, वायरल इन्फेक्शन तो जरूर होता है। बिल्कुल, तो बस इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन आज का हमारा एक टॉपिक है, तो वो जो लोग जो जिनके साथ एक ऐसा मसला होता है कि जो ठीक ही नहीं होते हैं, जिनके साथ बीमारी कंटिन्यूसली लगी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर एक ऐसी नज़र है जो कहते हैं कि नज़र खा जाती है। मतलब ये वर्ड मुझे समझ नहीं आता, ये मैंने बड़े इसमें आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़े। और इसके अलावा एक होता है नज़र बद भी। तो थोड़ा सा पहले मैं आपसे चाहूंगी कि इसकी एक्सप्लेनेशन कर दें कि ये क्या है। और कहते हैं कि नज़र बद और माँ की नज़र भी लग रही है, बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, नजर बद होती है बिल्कुल। अब पहले तो ये बता दें कि नजर बद जो है वो वाकई ही पत्थर को भी तोड़ डालती है, पत्थर को भी तोड़ ठीक है ना, डालती है। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो नजर बद से महफूज रहना चाहिए। आपने एक ही सवाल में उसके दौरान कई सवाल कर दिए। बिल्कुल साथ साथ कर दिए क्योंकि टेंशन है, कंफ्यूजन हाँ, है। देखिए, नजर अच्छी भी होती है और नजर गंदी भी होती है। अच्छा। तो अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में मासूम बच्चे खेल रहे होते हैं, घर वालों की उनको नजर लग जाती है। हाँ, वो अच्छी नजर होती है। तो सबसे पहले जो अच्छा लगे तो माशाअल्लाह जरूर कहना चाहिए, सही, ताकि वो सामने वाला नजर बद से महफूज हो। सिर्फ इंसान के लिए, किसी चीज के लिए भी? हाँ, देखें, हर चीज के लिए। अच्छा। हर चीज के लिए। और नजर सिर्फ इंसानों को ही नहीं लगती, बल्कि अजिन्नात की भी नजर लगती है। अच्छा जी, क्योंकि इंसानों की मखलूक से ज्यादा जो दुनिया में तादाद है वो जिन्नात की ज्यादा है। जिन्नात की ज्यादा है। और वो हमसे पहले इस दुनिया में भेजे गए हैं। सही। अच्छा, अब नजर का तोड़ किस तरह हो, तो सबसे बेहतरीन तो वो दुआ मुबारक हैं जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन अपने दोनों शहजादों को पढ़ के दम किया करते थे। उसके बाद आ जाए तो सूरह फलक और सूरह इखलास सही कम से कम 3-3 मरतबा पढ़ के दम कर दें। ठीक है। फिर घरों में जो राई टोटके हैं, टिप्स है छोटी छोटी, कि मिर्चों से नजर उतार देना, बिल्कुल बिल्कुल, अंडे कपड़े से मतलब ये ना पानी से, पहले तो सिल बट्टे फिटकरी होते थे, से, कुछ फिटकरी नहीं से है, भी, बहुत सारी ये चीजें। टिप्स है, ठीक है ना, इनको फायदा हो भी जाता है और कुछ को नहीं भी होता। सही। लेकिन बेहतरीन अमल यही है कि कुरान पाक से रुजू किया जाए और सूरह फलक, सूरह इखलास, आयतल कुर्सी ये पढ़ के दम किया जाए, पानी पे दम करके पानी पिला दिया जाए। इस तरह आपका सवाल था इसी सवाल के अंदर कि मुस्तकिल बीमार हैं और शिफा नहीं मिल रही, क्या वजह है? तो जब बीमार हुए तो उसका इस्तिखारा कर लिया जाए और ये इस्तिखारे की मदद से हासिल मालूम कर लिया जाए कि ये खाली बीमारी ही है या नजर बद है या बदअसरात है या ब्लैक मैजिक है, जिसको सिफली कहा जाता है, बदअमलियात हमारी लाइन में कहा जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि ये इसका शिकार है, तो फिर दवाइयाँ 100% काम नहीं करती। देखिए, कीमती से कीमती दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन वो कीमती से कीमती उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, नजर ही नहीं तोड़ी जा रही, उसका हल ही अगर बदअसरात है तो बदअसरात हटेंगे तो दवाइयाँ काम करेंगी, सिफली अमल है तो सिफली अमल की काट होगी तो और इन तमाम का इलाज कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अच्छा मुबशर साहब, कॉलर्स को शामिल करते हैं, तो इंतजार करें, देखते हैं कि जी हमारे साथ कौन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम शाहीन है। शाहीन, आपका मसला क्या है?
हाँ, मेरा मसला ये है कि मेरे घर में एक बेसुकूनी सी है हम्म। और मतलब सब लड़ते झगड़ते। वालदा का नाम बता दीजिए पहले, फिर मसला बताइएगा। जी, वालदा का नाम बता दीजिए, फिर मसला बताइएगा। हाँ, मेरी वालदा का नाम है सरदार बेगम। सॉरी, सरदार बेगम। सरदार बेगम जी। अब बताइए, बेसुकूनी है और परेशानी है जी। परेशानी है और मतलब जो थोड़ा बहुत कोई काम बनता है तो फिर काम बिगड़ जाता है, तो कुछ समझ नहीं आता, या तो किसी ने कुछ करा दिया है और बच्चे भी मेरे बात नहीं मानते हैं और बस काफी बेसुकूनी है, तो उसके बारे में जरा मुझे चलें अभी बता देते। अभी मुबश्शिर साहब आपको बता रहे हैं, आप नोट भी कर लीजिएगा कि आपको क्या कहना है। सवाल एक कर लूं मैं? आप बस सुने। लाइन पे हैं? हेलो। जी जी। शाहीन बहन को किस शहर से आप बात करेंगे? कराची से जी। कराची में ही है। अच्छा शाहीन बहन, ये बताइए शादी को कितना अर्सा हो गया आपकी? शादी को तो मेरे कोई 35 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह से। बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, ये बच्चों के साथ साथ दीगर लोग भी आपकी नाफरमानी करते हैं, आपका कहानी मानते हैं? जी हाँ, ऐसे ही है कुछ। अच्छा, हालत नींद में आप चौंकती भी हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। पहले था ये सिलसिला आपका? जी, पहले ही सिलसिला था आपका हालत नींद में चौंकने वाला? क्या कह रहे हैं? सोते वक्त आप चौंक जाती पहले हैं? चौंकती थी? नहीं नहीं नहीं, पहले पहले भी हाँ, नहीं? पहले ऐसा हो जाता था। पहले ऐसा ऐसा हो था ना आपके साथ? जी जी जी। तो यही तो मालूम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके जायचे में यही मामला आ रहा है। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह इस मसले का हल आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताते हैं। ठीक है, चले क्या मसला आ गया? शाहीन बहन के ऊपर जो है कुआरेपन से बदअसरात थे पहले से है? हाँ। अच्छा, यानी वक्ती 35 तौर साल के से ऊपर ज्यादा अरसा। जी हाँ, ये कुआरेपन से इनके सिलसिला था जी और यही इल्मुल अदात के मुताबिक मामला सामने आया है। जी। तो मेरी बहन, मैं दुआ करूंगा आपके लिए, अल्लाह करीम अपनी अता से जल्द आप बदअसरात से महफूज हो जाएं। और इसका तीर बहदफ वजीफा भी बताता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची में मौजूद हैं तो रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट पे बिलमुशाफा घर के किसी फ़र्द के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ एक उसूल है कि हम ख़वातीन को, अपनी बच्चियों को, बहनों को हम अकेले नहीं बुलवाते। हम कहते हैं घर का कोई ना कोई फ़र्द साथ में आए, शौहर आए, भाई आए, वालिद साहब आ जाएँ, कोई ना वालदा आ जाए, कोई किसी के साथ आए, अकेले ना आए। पहली बात तो। और दूसरा ये कि आपके मामला 2 हल करने हैं। एक तो बदअसरात के से महफूज करना है अल्लाह के कलाम की मदद से, दूसरा अमल हुब करना है, मोहब्बत का अमल, ताकि आपके से मुंसलिक जितने भी लोग हैं, आपके घर वाले, वो तमाम के तमाम आपकी माफ़त और फेवर में हो जाएं। तो सबसे पहले बदअसरात से महफूज रहने के लिए एक वजीफ़ा बता रहा हूँ आपको। 33 मरतबा सूरह फलक, 33 मरतबा सूरह नास, 7 बार आयतल कुर्सी रोज़ाना आप पढ़ेंगी। बाद फजर, बाद नमाज फजर पानी पे दम करेंगी और पानी पिएंगी। बाद नमाज इशा पढ़ेंगी ज़ा या ज़कियो बहक़ शरफ़ाइल, ज़ा या ज़कियो बहक़ शरफ़ाइल 37 मरतबा पढ़ेंगी। अव्वल आखिर 3 बार दूर शरीफ के साथ पानी पे दम करके इशा की नमाज के बाद वो पानी भी पीना है आपको। ठीक है। अमले हुब का वजीफ़ा जो आपको पढ़ना है असर और मगरिब के दरमियान पढ़ेंगी। बाद नमाज असर मगरिब से पहले पढ़ेंगी हा या हक को बहक़ तन कफ़ीलो 108 मरतबा, हा या हक को बहक़ तन कफ़ीलो 108 मरतबा। हर मीठी ग़िज़ा पर, चाय, शरबत, लस्सी, जो भी मीठी चीज़ घर में बनती है उस पर दम करें और तमाम घर वालों को खिलाएं पिलाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें, नमाज की पाबंदी रखिए। इंशाल्लाह 28 दिन के अंदर ये मामलात आपके दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे अल्लाह की करम ठीक से। है जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक मिसेस अमीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। कल का आपका शो बड़ा अच्छा था, मैंने बहुत कॉल करी, मुझे बहुत लंबा होल्ड करा, फिर मेरी लाइन ड्रॉप हो गई। ओहो, चलिए आपने दोबारा कॉल की, आपकी मोहब्बत है, थैंक यू सो मच। बताइए क्या पूछना चाहेंगी? नहीं, मुझे तो आपसे बात करनी है, आपका बस आपकी तारीफ करनी थी और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों की मोहब्बत मुझे इसी तरीके से चाहिए, शो देखती रहें और ये अपना जो फीडबैक और रिस्पॉन्स है ये हमें देती रहें ताकि और अच्छा हम शो बना सकें। हमारे जो गेस्ट इतने अपना टाइम निकाल कर आते हैं वो आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच मिसेस अमीन। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अभी हमारे कॉलर जैसे आते हैं मैं उनका मसला शामिल करूँगी। एक तो आपने ये बता दिया कि जब इंसान के लिए क्या वो सूरत में चारों कुल या जो आपने सूरह फलक बताइए वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो कि किसी जो हमसे जेलस होते हैं वो भी मतलब अक्सर ऐसे करते हैं कि आपने कहा माशाल्लाह कह देना चाहिए, वो अक्सर दूसरी चीज़ों को भी नज़र लगा रहे होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए ये मैं पूछना चाहूँगी। एक कॉलर से बात कर लें तो आप थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। मैं अक्सा कमल बात कर रही हूँ।